روزانہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحریہ روم میں غرق کر کے صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھے کہ 7 دن گزر گئے تھے۔ صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحریہ روم میں ابھی تک بچے کچے بحری جہاز کو، کشتیوں کو نگل اور انسان کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہی جلتے جہاز سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان فڑفڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہاز کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھیں اور ہدایت بھی دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں، اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیز نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہاز سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا، یا تو لاشیں تھیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی۔ بہت سی ایسی تھیں جن میں تیر پیوست تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحہ کا معائنہ بڑی غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحہ کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے تھکے ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا کر پھینکتی تھیں، وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی وہیں کی جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہے تھے۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گئے تھے۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹانوں کی ایک سمت اور عقب میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے شہرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اترے اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل دیے۔ محافظ دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ 3 سالار تھے، ان میں اس کا رفیق خاص بہاؤالدین صداد بھی تھا۔ وہ اس معرکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا۔ لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے ہی واپس چلی جاتی تھیں۔ ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گئے اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے آگے پیچھے اور بائیں طرف اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ وہ چٹان پر کھڑے ہو گئے جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ اس نے بحریہ روم کی طرف دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ اس نے ناک سکوڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا۔ بولا، کس قدر تعفن ہے۔ اس کی اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں۔ فڑفڑانے کی آواز سنائی دی، پھر ہلکی ہلکی چیخ اور سیٹیاں سنائی دیں۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے اور چٹان کی اوٹ میں جدھر ساحل تھا اترتے گئے۔ ایوبی نے کہا، لاشیں ہیں۔ ادھر گئے تو 15-20 گز دور گدھ 3 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ کر گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہوں۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتے رہے، پھر اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا، ان لوگوں کی کھوپڑی مسلمان کی کھوپڑیوں سے بہتر ہے۔ یہ ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک سالار نے کہا،
सलीबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प करते चले जा रहे हैं। सद्दाद ने कहा, और हमारे बादशाह उन्हें जजिया दे रहे हैं। फलस्तीन पर सलीबी काबिज हैं। सुल्तान, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फलस्तीन से उन्हें निकाल सकेंगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, खुदा की जात से मायूस ना हो। एक और सालार बोला, हम अपने भाइयों की जात से मायूस हो चुके हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, तुम ठीक कहते हो। हमला जो बाहर से होता है उसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम में से कोई सोच भी सकता था कि कुफ्फार के इतने बड़े बाहरी बेड़े को तुम इतनी थोड़ी ताकत से नजर आतिश करके डुबो सकोगे? तुमने शायद अंदाजा नहीं किया कि इस बेड़े में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मसर पर मक्खियों की तरह छा जाता। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर उस लश्कर को समंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है उसे तुम इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है। तुम्हारे बाजू में उसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से लड़ोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर दोनों को खत्म कर देगा। वह आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टानों के साथ साथ जा रहे थे। चलते चलते रुक गए, झुककर रेत से कुछ उठाया और हथेली पर रखकर सबको दिखाया। यह हथेली जितनी बड़ी सलीब थी जो सियाह लकड़ी की बनी हुई थी। उसके साथ एक मजबूत धागा था। उसने इन लाशों के बिखरे हुए एजा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे। फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से उसके सामने गिरी थी। वो तेज तेज कदम उठाते खोपड़ी तक गए। 3 गिद्ध खोपड़ी की मिल्कियत पर लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर वो चले गए। सुल्तान अय्यूबी ने सलीब खोपड़ी पर रख दी और दौड़कर अपने सालारों से जा मिला। कहने लगा, मैंने सलीबियों के एक कैदी अफसर से बातें की थी। उसके गले में भी सलीब थी। उसने बताया कि सलीबी लश्कर में जो भी भर्ती होता है उससे सलीब पर हाथ रखकर हलफ लिया जाता है कि वो सलीब के नाम पर जान की बाजी लगाकर लड़ेगा और वो रुए जमीन से आखिरी मुसलमान को भी खत्म करके दम लेगा। इस हलफ के बाद हर लश्करी के गले में सलीब लटका दी जाती है। ये सलीब मुझे रास्ते से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने उस खोपड़ी पर रख दी है ताकि उसकी रूह सलीब के बगैर न रहे। उसने सलीब की खातिर जान दी है। सिपाही को सिपाही के हलफ का एहतराम करना चाहिए। सद्दाद ने कहा, सुल्तान, ये तो आपको मालूम है कि सलीबी जेरूसलम के मुसलमान बासिंदों का कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहाँ से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम उन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, इंतकाम नहीं, हम फ़लस्तीन लेंगे, मगर फ़लस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हायल हैं। वह चलते चलते रुक गया और बोला, कुफ़ार ने सलीब पर हाथ रखकर सल्तनत इस्लामिया के खात्मे का हलफ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर और हाथ अपने सीने पर रखकर कसम खाई है कि फ़लस्तीन ज़रूर लूँगा और सल्तनत इस्लामिया की शराहद अफक तक ले जाऊँगा। मगर मेरे रफ़ीकों, मुझे अपनी तारीख का मुस्तकबिल कुछ रोशन नज़र नहीं आता। एक वक्त था कि ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू। अब हमारे बुजुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रुझान देखकर मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे मगर ईसाई उन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसी में बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह हैं, आज़ाद हैं, मगर वो आज़ाद नहीं होंगे। मैं फ़लस्तीन तो ले लूँगा मगर मुसलमान का रुझान बता रहा है कि वो फ़लस्तीन गंवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज है। 50,000 सूडानी लश्कर कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आस्तीन में नाजी नाम का सांप पालती रही। मैं पहला अमीर मिस्र हूँ जिसने देखा है कि ये लश्कर हमारे लिए न सिर्फ बेकार है बल्कि खतरनाक भी है। अगर नाजी का खत पकड़ा ना जाता तो आज हम सब उस लश्कर के हाथों मारे जा चुके होते या उसकी कैद में होते। अचानक हल्का सा झन्नाटा सुनाई दिया और एक तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दोनों पांव के दरमियान रेत में जा लगा। जिधर से तीर आया था इस तरफ सुल्तान अय्यूबी की पीठ थी। सालारों में से कोई भी उधर नहीं देख रहा था। सब ने बिदक कर उस तरफ देखा
जिधर से तीर आया था उधर नोकीली चट्टानें थीं। तीनों सालार और सलाहुद्दीन अय्यूबी दौड़कर एक ऐसी चट्टान की ओट में हो गए जो दीवार की तरह आमोदी थी। उन्हें तवक्को थी कि और भी तीर आएंगे। तीरों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं है। सद्दाद ने मुंह में उंगलियां रखकर जोर से सीटी बजाई। मुहाफिज दस्ता तैयार था। उनके घोड़ों के सर पर टापू सुनाई दिए। उसके साथ ही तीनों सालार उस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वह बिखर कर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज्यादा ऊंची नहीं थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके पीछे गए। एक सालार ने उसे देख लिया और कहा, सुल्तान आप सामने न आए। मगर सुल्तान अय्यूबी नहीं रुके। मुहाफिज पहुंच गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे कहा, हमारे घोड़े यहीं छोड़ दो और चट्टानों के पीछे जाओ। उधर से एक तीर आया है, जो कोई नजर आए उसे पकड़ लाओ। सुल्तान अय्यूबी चट्टान के ऊपर गए तो उसे ऊंची ऊंची चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई नजर आईं। वह अपने सालारों को साथ लिए पिछली तरफ उतर गए और हर तरफ घूम फिर कर और चट्टानों पर चढ़कर देखा। किसी इंसान का निशान तक नजर न आया। मुहाफिज चट्टानी इलाकों के अंदर और ऊपर और इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी नीचे उतरकर वहां गए जहां रेत में तीर गड़ा हुआ था। उसने अपने रफीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, दूर से आया है इसलिए पांव में लगा है, वरना गर्दन या पीठ में लगता। रेत में भी ज्यादा नहीं उतरा। उसने तीर उठाकर देखा और कहा, सलीबियों का है, हसीसन का नहीं। एक सालार ने कहा, सुल्तान की जान खतरे में है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हंसकर कहा, और हमेशा खतरे में रहेगी। मैं बहरारूम में कुफ्फार की वो कश्तियां देखने निकला था जो मल्लाहों के बगैर डोल रही हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों, कभी ना समझना कि सलीबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, घटाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सलीबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूँ। यह फन हरब का नया बाब है। इसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गए और अपने कैंप की तरफ चल पड़े। उसके सालार भी घोड़े पर सवार हो गए। उनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर दिया, एक ने बाएं कर दिया और एक ने अपना घोड़ा उसके बिल्कुल पीछे और करीब रखा ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक ना पहुंच सके। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस कहानी का भाग जब भी हम अपलोड करें तो वो आप तक बआसानी पहुंच जाए।